26 جو ہمارے پیسنجر زون سے ہیں، اس میں سے میں نے پرسوں آپ کو میرا خیال 21 بتایا تھا، ناؤ دی فگر از 26 جو شہید ہو چکے. 18 passengers were from army and FC and 3 were from the railway and civilians the remaining 5. So these are the count of the division of this 26. Out of the 354 the hostages that have been covered alive, 37 are injured out of this 354. 33 terrorists جو سے وہ جہنم والے. جعفر ایکسپریس پر حملے میں 26 مسافر شہید ہوئے. 18 شہداء کا تعلق پاک فوج اور ایف سی سے تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ. کہا کلیئرنس آپریشن کے دوران کوئی زندگی ضائع نہیں ہوئی. آپریشن کے دوران 33 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں نے پہلے قریبی ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ کیا. ریلوے ٹریک پر آئی ای ڈی دھماکہ کیا گیا. بچوں اور عورتوں کو ٹرین کے اندر رکھا گیا. باقی مسافر باہر بٹھائے گئے. زخمی کے شوٹرز نے سب سے پہلے خودکش بمباروں کو نشانہ بنایا. پاک فضائیہ نے انتہائی مؤثر کردار ادا کیا. یہ جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین اسپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر از دی انڈین پلان اینڈ واٹ دی انڈینز آف سبورژن اینڈ ٹیررزم ان بلوچستان. دس از یٹ اندر انسیڈنٹ آف ٹیررزم جس کی جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ یہ ویپن زون سے ہیں، یہ بھی وہیں سے افغانستان سے ہی اویلیبل ہو رہے ہیں. افغانستان جو سا ہے ون آف دی ریزن آف دی سرج ان ٹیررزم از دیٹ ان افغانستان جو سا ہے ہر قسم کی جو دہشت گرد ایکٹیویٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو اسپیس مل رہی، چاہے وہ ریجنل ہے چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں جعفر واقعہ بھارت کی دہشت گرد ذہنیت کا تسلسل ہے. پاکستان میں دہشت گردوں کا مرکزی اسپانسر بھارت ہے. جعفر ایکسپریس پر حملے کے تانے بانے افغانستان سے ملے. دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے. افغانستان میں دہشت گردوں کو اسپیس اور تربیت مل رہی ہے. نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر عمل ہو تو دہشت گردی ختم ہوگی. دہشت گرد گروپ کے دی ہوئی ویڈیوز، پرانی فیک ویڈیوز وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں جیسے واٹ انسیڈنٹ اور کیا ہو گیا ان دیر سیلیبریٹ. ان کے پھر اگر آپ بات چیت سنیں جو وہاں تجزیہ کار بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو یو کین سی دیٹ کہ وہ وہی بیانیہ بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو دہشت گرد یہاں تھے اس کا انفارمیشنل پرانگ وہ چلا رہے ہیں. یہ آپ ٹرین کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دس از اگین این اولڈ ویڈیو. یہ ایک پرانی سوشل میڈیا سے اٹھا کے اس ویڈیو کو جو ہے وہاں کا مین اسٹریم میڈیا دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی ٹرین کو آگ لگی ہوئی جل رہی. دہشت گردوں کی مدد کے لیے بھارت سے انفارمیشن وارفیئر چلائی گئی. بھارتی میڈیا نے فیک ویڈیو چلا کر بیانیہ بنانے کی کوشش کی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بھارتی میڈیا نے دہشت گرد گروپ کی بھیجی گئی ویڈیو چلائی. بھارتی میڈیا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس امیجز اور ویڈیوز چلائیں. بھارتی میڈیا نے جلتی ہوئی ٹرین کی پرانی ویڈیو چلائی. ان دہشت گردوں نے ان تمام روایات کو پامال کر دیا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ان کو بلوچ نہ کہا جائے. اس لڑائی کا نہ بلوچیت سے کوئی تعلق ہے نہ رائٹ سے کوئی تعلق ہے. پیورلی یہ ایول فورسز ہیں، ٹیررسٹ ہیں جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کو وائلنس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. افغانستان واز دی اونلی کنٹری ان دی ورلڈ جنہوں نے کریشن آف پاکستان کی مخالفت کی. جتنے بھی حملے ہوتے ہیں تمام کے تمام آج بی ایل اے وہاں پر افغان سٹیٹ پیٹرنیج میں پل رہی ہے. لوگ وہاں رہ رہے ہیں، وہاں پر پیٹرنیج میں رہ رہے ہیں، ویپنز لے کے پھر رہے ہیں، ان کو وہ کارڈز دیے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ یہ ناراض بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں. ان سب دہشت گردوں کی نانی بھارتی خفیہ ایجنسی را ہے. دہشت گردی کا تعلق بلوچستان کی محرومی سے نہیں، یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں. افغانستان میں بی ایل اے والوں کے کارڈ بنے ہوئے ہیں. I'd like to start condemning the outrageous terrorist attack that we saw in Balochistan over the last couple of days and saluting the bravery with which our armed forces
जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस स्पीड के साथ, जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया है, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है, सलाम पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम, कहते हैं पाक फौज ने बहादुरी से जाफर एक्सप्रेस को आया, लगा था दूर दराज इलाके में ऑपरेशन मुश्किल होगा, बहादुरी से दहशत को शिकस्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान हुकूमत और फोर्सेस को खिराज तहसीन। ये बार बार कहते हैं कि ये दहशतगर्दी शुरू क्यों हुई। ये 2018 के कुछ ऐसे फैसले किए गए, ये दहशतगर्दी दोबारा लौटी उन पॉलिसियों से, उन तालिबान को वापस लाकर अपनी सियासी फायदे के लिए उनको पाकिस्तान लाकर गया। वही लोग आज हमारी लोगों की गर्दनें काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, टीटीपी और बीएलए में कोई फर्क नहीं, दोनों कलदम तंजीमों के हैंडलर्स हमसाया ममालिक में बैठे हैं, तालिबान को सियासी फायदे के लिए वापस लाकर बसाया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में आज़म वर्सक बाजार की मस्जिद में धमाका, नमाज जुमा के दौरान धमाके में खतीब मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत 2 अफराद जख्मी। रिमोट कंट्रोल धमाका उस वक्त किया गया जब मौलाना अब्दुल्ला नदीम इमामत करा रहे थे। मौलाना की हालत तशवीशनाक। मौलाना अब्दुल्ला नदीम JUIFA के ज़िले अमीर हैं। पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो और इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद भी हम आपकी खातिर लगते रहेंगे। पानी की तकसीम पे और नया कैनाल्स पे एक वाज़े मौक़िफ़ लिया। जब PTI के दौर में 2 नया कैनाल्स बनाने की बात की गई, हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बिरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे। पानी के मामले पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। बिलावल भुट्टो का सिंध में मुलाजमत के पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा PTI हुकूमत में कैनाल्स बनाने का फैसला हुआ, सिंध असम्बली में सब ने कैनाल्स पर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया, अपनी आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाते रहेंगे। जहाँ तक आपने बात की कि तनकीद की जा रही कि हाउस जो है इल्लीगल है, अगर हाउस इल्लीगल है तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज इल्लीगल नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इल्लीगल नहीं है, हाउस की प्रोसीडिंग इल्लीगल नहीं, तनख्वाहें लेना इल्लीगल नहीं है। तो ये नहीं मुझे समझ आता कि फिर पार्टिसिपेट भी करना है, बैठना भी है, उसका हिस्सा भी बनना है और इल्लीगल भी कहना है। तहरीक इंसाफ वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं, फिर तनख्वाह मनाते हैं। ऐलान जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन से सवाल, बोले हर चीज़ का हल मुज़ाकरात से है, मुज़ाकरात किसी एक शख्सियत के लिए ना हो, ताली 2 हाथ से बचती है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल पर तौहीन अदालत केस, एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि बानी को जेल से लाना मुमकिन नहीं, वीडियो लिंक पर पेशी की सहूलत भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लॉ क्लर्क को कल बानी PTI से मिलने का हुक्म, केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई। सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, अलीमा खान आज फिर इस्लामाबाद में JIT के सामने पेश ना हुई। JIT ने अलीमा खान की इस्तदा पर 19 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। अलीमा खान की जानिब से उनके वकील JIT के सामने पेश हुए। IMF पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी पर मुतमईन, मिनी बजट के खदशात खत्म, अगली किस्त की राह हमवार हो गई। IMF का रिटेल और रियल एस्टेट समेत कई शोबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर। IMF मिशन की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए मुआवनत जारी रखने पर इत्तफाक। IMF मिशन आज वापस रवाना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई क़िल्लत खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं मुल्क में चीनी की वाफर मिक़दार मौजूद है, चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए, मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए, आम आदमी का माफिया के हाथों इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। सोने की फी तोला कीमत में 4,700 का इजाफा, कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत 3,14,000 रुपये हो गई। गुज़श्ता रोज़ भी सोने की कीमत में 2,800 रुपये का इजाफा हुआ था। महकमा इत्तलात सिंध के पोर्टल की लॉन्च मुराद अली शाह ने कहा कि मौक़े और टैलेंट को इकट्ठा करना चाहते हैं। बज़रिया पोर्टल सरकारी मुलाजमतें देंगे। ग्रेड 4 तक के लिए पोर्टल पर अप्लाई किया जा सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट भी पोर्टल से लिंक करेंगे। शर्जील मेमन बोले, मुलाजमत चाहने वालों के लिए पोर्टल बनाया, निजी इदारों में मुलाजमत के मौक़े भी मिलेंगे। कराची से लाहौर आने वाली PIA की परवाज़ का बगैर व्हील लैंडिंग का मामला। PIA की परवाज़ 306 का लापता पहिया मिल गया। व्हील कराची एयरपोर्ट की रिमोट पार्किंग बे की पास से मिला। व्हील के जहाज से अलहदा होने की वजह से किसी जानी या माली नुकसान के शवाहिद नहीं मिले। रूस और सऊदी अरब का यूक्रेन की सूरत हाल हल करने पर इत्तफाक। रूसी सदर पुतिन और सऊदी वलीअहद शाहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों का भी जायज़ा लिया। सऊदी वलीअहद रूस अमरीका ताल्लुकात के लिए किरदार अदा करने पर आमादा। ट्रंप इंतज़ामिया का रूस के तेल, गैस और बैंकिंग सेक्टर पर पाबंदियां सख्त करने का मंसूबा। अमरीकी महकमा ख़जाना ने बाइडेन इंतज़ामिया के रूस को दी गई 60 रोज़ की रियायत ख़त्म कर दी। अमरीकी पाबंदियों के बायस दीगर ममालिक के लिए रूस का तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। कीवीज को हराने का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्राइस्ट चर्च में भरपूर ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने हेगले ओवल में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 16 मार्च को खेला जाएगा। HPL PSL की तारीख में पहली बार ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर। ट्रॉफी का नाम दिलुमिनारा ट्रॉफी रखा गया। ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का सफर करेगी। ट्रॉफी लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद भी जाएगी। मुल्क भर में होली के रंगों की बारिश। हिंदू बरादरी मजहबी त्यौहार पर इंतहाई पुरजोश। बच्चे, बड़े, खवातीन सब होली के रंगों में नहा गए। मिठाइयों और खुसूसी खानों का अहतमाम। मंदिरों में खुसूसी दुआया तकरीबात। मुल्क की सलामती और क़याम अमन के लिए भी दुआएं। गिलगित बल्तिस्तान में नायाब 4 बर्फानी तेंदुए एक साथ मौजूद। बर्फानी चीतों की शानदार तस्वीर वाइल्ड लाइफ वॉचर ने गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से हासिल की। माहिरीन के मुताबिक बर्फानी तेंदुए आमतौर पर छुपकर रहने वाले जानवर होते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान, भावलपुर, राजनपुर, मियांवाली, खुशाब में बादल बरस पड़े। बन्नू और करक में भी बरसात। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। जेकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना, सक्खर में तेज़ हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। उर्दू के चमन का महकता फूल। लाजवाल अशार की खालिक शायरा नौशी गिलानी 61 बरस की हो गई। नौशी गिलानी का असल नाम निशात गिलानी है। 14 मार्च 1964 में भावलपुर के एक इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुई। और 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब। खूबसूरत दरिया, लहलहाती फसलें, मीठी बोली और देही जिंदगी के खूबसूरत रंग। सोहनी धरती पंजाब की सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। चौपाल, ढोल और भंगड़ा पंजाब की खूबसूरत सकाफत का हिस्सा है।